Good morning, students. I hope you all are fine. So, today I will start with chapter 4 of your civics book, that is electoral politics. So, did you all understand the previous chapters? So, if you have understood that, very good. And if you haven't, you can revise from the PDF or the notes that we have forwarded, and whatever the doubts you have, you can write it somewhere, and when we meet, and of course we are going to meet soon, the things or the time never remains the same. Okay, so I'll start with the chapter. Why do we need elections? हमें elections चाहिए क्यों? Elections हमें इसलिए चाहिए because we need to choose our representative. To run the country, we need to make certain laws, and it is not possible that we all can come together at a given place on a given time and then we can sit and frame laws for us. That is not possible. So in that case, we need to choose our representatives जो हमारे लिए laws बनाएंगे. So the first point that you will see is that elections take place regularly in any democracy. किसी भी democratic country में election का regularly होना mandatory है, because that is one of the essential features of a democratic country. There are number of countries in the world in which elections take place to choose people's representative. ऐसी बहुत सारी countries हैं जहाँ पे ये mechanism है. So what is election? Election is a mechanism to choose the people's representatives. USA में देखिए elections होते हैं, India में of course होते हैं, UK में होते हैं. So there are many countries around the world where election takes place to choose people's representatives. तो representative कौन हुआ? जो हमें represent करे पार्लियामेंट में, जो हमारे बिहाफ पे laws बनाए, वो कौन हो गया? वो हमारा representative हो गया. The process by which people can choose their representatives at regular intervals and change them whenever they want to is called an election. So we can choose them, and there is a fixed tenure, that is for how long will they be there in the government. Say 5 years in our context. तो 5 years के बाद हम उन्हें री-इलेक्ट भी कर सकते हैं अगर उन्होंने हमारे लिए अच्छा काम किया है. यू सी बीजेपी गवर्नमेंट वॉज री-इलेक्टेड इन 2019 एंड इफ़ दे हैव नॉट वर्कड वेल फॉर अस तो हम उन्हें चेंज भी कर सकते हैं. तो मतलब एक्चुअल पावर किसके हाथ में? एक्चुअल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस. तो एक्चुअल डेमोक्रेसी चॉइस ऑफर करती है, लाइक यू सो इन चाइना. अब चाइना में क्या है कि वहाँ पे कम्युनिस्ट कंट्री है, वो तो एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी. तो इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन चॉइस कहाँ है पीपल के पास? वोट तो हमें उन्हीं को करना है. आई एक्सप्लेन्ड यू दिस इन द लास्ट चैप्टर एज वेल. तो इन दैट केस एक्चुअल इलेक्शन वो होता है दैट ऑफर्स चॉइस. लाइक इन आवर कंट्री वी आर अ मल्टी पार्टी सिस्टम, तो यहाँ चॉइस ऑफर होता है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. तो हम जिसे चूज़ करेंगे, हम जिसे इलेक्ट करेंगे, दैट पर्टिकुलर पार्टी विल मेक लॉज फॉर अस बिकॉज दैट पार्टी विल फ्रेम द गवर्नमेंट. और जो गवर्नमेंट बनाएगा वही लेजिस्लेचर में बैठेगा, तो जो लेजिस्लेचर में बैठेगा वो लॉज बनाएगा. They can choose who will form the government and take major decisions. So here they is we the people. So we will choose the political party that has been working for the people. That political party will form the government and they will sit in the parliament and they will take major decisions for the people. They can choose the party whose policies will guide the government and law making. तो हम चूज़ करेंगे वो पार्टी जो हमारे लिए लॉ मेकिंग का रोल निभाएगी. What makes an election democratic? So because we are living in a democratic country, we want the process of election also to be democratic. So there are minimum conditions that has to be fulfilled for an election to be called as democratic. Everyone should be able to choose their own representative. So there is only one criterion, that is age. 18 and above. If you fulfill this age criterion, we all are capable of voting, and thus what we are doing, we are choosing our own representative. Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choice to the voters. तो पॉलिटिकल इक्वालिटी इसी को बोलते हैं, राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन. इफ़ यू आर फुलफिलिंग द एज क्राइटेरियन ऑफ 18 एंड अबव यू कैन वोट. अगर आप 25 एंड अबव है यू कैन पार्टिसिपेट इन लोकसभा इलेक्शंस. Okay,
तो सब फ्री होने चाहिए टू कंटेस्ट इलेक्शन। तो ये इलेक्शन, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल फुलफिल होता है हमारे कंटेक्स्ट में। एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। सो अनलाइक चाइना इट इज़ नॉट अ वन पार्टी सिस्टम, हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम में रह रहे हैं। तो बिल्कुल दिस थिंग that elections must offer real choice to the voters, this is very much being fulfilled in our country. Elections must be held regularly after every few years. So 2014 Lok Sabha election was conducted, 2019 it was conducted again, because Indian constitution says that there should be a fixed tenure of 5 years. 5 years के बाद फिर से इलेक्शन कंडक्ट होता है। इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ वर्कड वेल फॉर अस, हमारे लिए हमारी वेलफेयरिस्टिक गवर्नमेंट रही है, हम उन्हें री इलेक्ट करेंगे। अगर वेलफेयरिस्टिक नहीं रही है हम उन्हें चेंज कर देंगे। ऑल्दो देयर इज़ वन पॉइंट मोर दैट आई वुड लाइक टू ऐड इन हियर, 5 साल के पहले भी सरकार गिर सकती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए लोकसभा में। दैट इज़, अगर अपोजिशन ये कहे कि हमें सरकार के कामकाज के तरीके पे विश्वास नहीं है और वो एक मोशन इंट्रोड्यूस कर दे, और अगर वो मोशन मेजॉरिटी के साथ लोकसभा में पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। द कैंडिडेट्स प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। सो जो पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिलते हैं वही पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। So free means everyone should have a right to vote, and fair means there should be no malpractice. No one should be compelled to vote. किसी को फोर्स नहीं किया जाना चाहिए। ये जो रिगिंग होती है, जो फ्रॉड होते हैं इलेक्शन में, they should not be there. Of course you would have a feeling कि ये तो होता ही है। So no system is perfect. हम परफेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं बट ऑप्टिमम की बात कर रहे हैं कि जितना भी हो सके इस प्रोसेस को फेयर होना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स फॉर दैट वी हैव अ सेपरेट बॉडी, दैट इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है जो ये अश्योर करती है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर हो। इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स? सी, कॉम्पिटिशन इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड। ये नेगेटिव कब हो जाता है? जब इसमें माल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। एग्जाम इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन दैट यू पीपल गिव। तो इज इट नेगेटिव? नो, इट ओनली अलाउज अस टू इवैल्यूएट दैट वेयर डू यू स्टैंड, आपने क्या सीखा है। तो इलेक्शंस आर ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, बट it is sometimes made to be negative by the malpractices that takes place by the different political leaders. This competition takes various forms. Regular electoral competition provides incentives to political parties and leaders. तो उनको पता है कि अगर ये एक कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि टुडे आई हैव बीन इलेक्टेड, नाउ आई विल बी हियर टिल एटर्निटी, मुझे कोई नहीं हटा सकता है। क्यों? कांग्रेस को हटाया नहीं इंडिया के लोगों ने, बुरी तरह से हटा दिया। क्यों? बिकॉज दे वर नॉट वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एज इट इज सेड। I am not saying so. So we brought in BJP because we wanted to see some changes. तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है कि हमें किन इश्यूज़ को रेस करना है जिससे हमें लोगों के बीच पॉपुलैरिटी मिलेगी और हमारी जो चांसेस ऑफ विक्ट्री हैं दे विल इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। सो इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल यू विल बी चोजन अगैन। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग फॉर देम तो 5 years के बाद हमारे पास टाइम है, हम आपको निकाल देंगे, हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को लाएंगे। सो इफ़ यू फेल टू सेटिस्फाई योर वोटर्स यू विल नेवर बी एबल टू विन अगैन। नाउ यू सी कांग्रेस इज ट्राइंग सो हार्ड सिंस 2014 इलेक्शन बट दे वर नॉट एबल टू विन 2019 इलेक्शन। If the political party is motivated only by the desire to be in power, despite that it will be forced to serve the people. हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी पावर में सिर्फ रहना चाहती है, लेकिन वो पावर में रहने को कंटिन्यू कैसे करेगी जब तक वो लोगों को सर्व नहीं करेगी। तो इन दैट केस कंपटीशन ही उनको कंपेल करता है टू हैव अ वेलफेयरिस्टिक अप्रोच, क्योंकि अगर आप ये अप्रोच नहीं रखिएगा तो दूसरी जो पार्टी है या दूसरी जो पार्टी है वो इतना अच्छा काम करेगी कि वो आपसे आगे निकल जाएगी। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस।